Hello friends, welcome to the channel. So now we are going to study the next topic from the cardiovascular system, that is the electrocardiogram. In short we call it as ECG or EKG. So let us start. Now the heart consists of two events. One is the electrical event, second is the mechanical event. Electrical event take place in the form of cardiac action potential which is in the form of waves. ठीक है, और जो मैकेनिकल इवेंट्स हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू पीरियड. वन इज द पीरियड ऑफ सिस्टोल दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड इज द पीरियड ऑफ डायस्टोल दैट इज द रिलैक्सेशन. है ना, तो ये जो दो इवेंट्स है दे कॉन्स्टिट्यूट द कार्डियक साइकिल. लेकिन ये मैकेनिकल इवेंट्स तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट ना हो. है ना, सो इट इज the result of the electrical events that the mechanical events, that is the contraction and relaxation of the heart, take place. ठीक है, तो हमको मालूम है ये जो electrical events हैं, we all know that the heart consists of a conducting system and these are made up of the special junctional tissues which comprises of the SA node, AV node, bundle of His, right and left bundle branch and Purkinje fibers. है ना, SA node impulses को generate करता है. Impulses SA node से AV node पे आती हैं and when they come to the AV node there is contraction of the atrium, then the impulses reach the bundle of His, then the right and left bundle branch and finally the Purkinje fibers which causes the contraction of the ventricles. ठीक है, now these impulses they are further taken up by the body fluid. है ना, अब ये जो impulses हैं ये हमारे हार्ट से निकलकर हार्ट के बाहर आ जाती हैं and you all know that the body fluid it is a very good conductor of electricity. है ना, तो हम ये कह सकते हैं heart is generating the impulse, that is heart is the electrical generator whereas the body fluid it is a very good conductor of electricity. ठीक है, तो अगर हम हमारे बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट सरफेसेस पर कुछ इलेक्ट्रोड्स को लगा दें, ठीक है, और उसको हम एक बहुत सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से, फॉर एग्जांपल दीज आर द पॉइंट्स, वी टेक सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन द बॉडी सरफेस एंड देन वी कनेक्ट इट टू अ गैल्वेनोमीटर व्हिच कैन डिटेक्ट द वोल्टेज इन मिलीवोल्ट्स, तो कितने पोटेंशियल हमारे हार्ट के द्वारा जनरेट हुआ है एग्जैक्टली हम उस पोटेंशियल को रिकॉर्ड कर सकते हैं. ओके, एंड दिस रिकॉर्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा हार्ट कितने पोटेंशियल से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट कर रहा है, एग्जैक्टली उस पोटेंशियल को हम एक गैल्वेनोमीटर के माध्यम से नाप सकते हैं जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. है ना, सो we can define the ECG as it is the record of the electrical activity of the heart during cardiac cycle. है ना, कार्डियक साइकिल के दौरान हमारे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उसके रिकॉर्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, नाउ द मशीन विच is capable of recording the electrocardiogram is called the electrocardiograph. यहाँ पे हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है. Sometimes we feel that graph it is the record and gram is the machine, but यहाँ पे केस उल्टा है. Gram is the record and graph electrocardiograph is the machine. है ना, तो ये मशीन कुछ नहीं होती. It is a box shaped structure and it consists of a very sensitive galvanometer जो कि कितना कार्डियक एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसको मिलीवोल्ट्स में रिकॉर्ड करता है. इलेक्ट्रिकली हीटेड स्टाइलस, देयर इज अ पॉइंटर जो कि इलेक्ट्रिकली हीटेड होता है, वो ईसीजी पेपर के ऊपर कुछ ग्राफ लाइक पैटर्न्स देता है जिसको कि हम रीड कर सकते हैं. There are various control buttons and there is a patient connector cable. है ना, एक patient connector cable होता है जो कि इलेक्ट्रोड्स को मशीन से और पेशेंट के बॉडी सरफेस से कनेक्ट करता है. ठीक है, and the study of the electrocardiogram is called electrocardiography. So now let us discuss about the electrographic paper. It is a wax coated paper with graph like divisions on it used for recording ECG. है ना, यानी कि ये जो ECG का पेपर है ये बिल्कुल ग्राफ के पेपर के जैसा होता है और इसके अंदर बहुत सारे ग्राफिकल डिविजन्स पाए जाते हैं. The graph paper is divided into 1 millimeter square by thin lines. है ना, बहुत सारी जो thin lines हैं ये ग्राफ पेपर को 1 मिलीमीटर के स्क्वायर में
डिवाइड करती हैं। एवरी फिफ्थ लाइन इज थिकर बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, है ना। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन इज थिकर। इफ वी सी इट वर्टिकली देन 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन इज अगेन थिकर, है ना। The ECG grid consists of the horizontal and the vertical lines. तो ये जो horizontal और vertical lines हैं ये constitute करती हैं ECG grid को। And you can see here the x-axis represents the time in seconds, whereas the y-axis represents the voltage or amplitude in millivolts, है ना। अब अगर हम एक स्क्वायर की बात करेंगे which is of 1 millimeter, तो on x-axis the 1 millimeter square represents 0.04 seconds. Okay, 0.04 seconds. So the 5 squares on x-axis they will come to 0.04 seconds multiplied by 5, that comes to 0.2 seconds, है ना। तो ये जो पूरा 5 मिलीमीटर है ये रिप्रेजेंट करता है 0.2 seconds को। Similarly on y-axis 1 millimeter square represents 0.1 millivolt. ठीक है, 0.1 millivolt. So the 5 squares will constitute 0.1 millivolt into 5, that is 0.5 millivolts. ठीक है, तो जो x axis है it represents the time in seconds and the y axis represents the voltage or amplitude in millivolts. Now here one more thing. The speed of the paper is fixed at 25 millimeters per second. यानी कि जो ECG मशीन से जो पेपर रन करता है इसकी जो स्पीड होती है ये 25 millimeters per second होती है. That means it will cover 25 small squares in 1 second. So now let us study about the leads. So leads they are the electrodes used for recording electrocardiogram, है ना। कुछ electrodes होते हैं जिनको हम ECG को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं leads, and these leads are of 2 types, that is the 6 limb leads and the 6 chest leads, है ना। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है जो limb leads हैं these are attached to the limbs of the body and the chest leads they are attached to the chest of the body, है ना। तो दोनों 6 नंबर में होती हैं। जो limb leads हैं they view the heart on vertical plane, है ना। तो this is the diagram of the heart. तो vertical plane में जो view आता है heart का ये limb leads के द्वारा आता है, और जो chest leads हैं they view heart on the horizontal plane, यानी कि this is the horizontal plane and ये है vertical प्लेन, है ना। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हम हार्ट को डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डायरेक्शन से व्यू कर रहे हैं, है ना। सो द 12 लीड्स ऑन ECG व्यू द हार्ट फ्रॉम 12 डिफरेंट एंगल्स. ओके, देन the limb leads are again classified into 2 types, that is the bipolar leads and the unipolar leads. So now we will study about each of one in detail. So now let us study about the bipolar limb lead or bipolar standard limb lead. They record the potential difference between the 2 points, है ना। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है बाइपोल का मतलब होता है 2 poles, तो ये किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड करती हैं. नाउ व्हाट आर दीज पॉइंट्स? In the body we take the 3 different points, that is the right arm, left arm and left leg as the points, है ना. तो इन पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं बाइपोलर लिम्ब लीड. So here we can say that both electrodes are active and at opposite polarity, है ना. तो दोनों को हम एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, इन पे हम इलेक्ट्रोड्स को रखते हैं and both of them are active, है ना. तो हम लीड 1 कब बोलते हैं? When the negative terminal is right arm, है ना. When the negative terminal is right arm and the positive terminal is left arm, we call it as lead 1. ठीक है. तो जो लीड 1 है इट रिकॉर्ड्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द राइट आर्म एंड द लेफ्ट आर्म. Then we call the lead 2 when the right arm is at negative terminal and the left leg is at positive terminal, है ना. तो जो right arm है ये negative है और जो left leg है ये positive है. We call it as lead 2. Then we call lead 3 when the negative terminal is at left arm and the positive terminal is at left leg. That means this, है ना. The negative is left arm
and the positive is left leg, we call it as lead 3. ठीक है? Now if we join the right arm, left arm and left leg, you can see here in the diagram that we get a equilateral triangle और हार्ट की पोजीशन इस equilateral triangle के अंदर होती है ना. इस triangle को हम बोलते हैं Einthoven's triangle. as Einthoven, he was the scientist विल्हेल्म आइंथोवन, है ना. इनको हम फादर ऑफ ईसीजी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ईसीजी के बारे में डिस्कवर किया था. ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर इस ट्रायंगल का भी नाम पड़ा है. एंड ही ऑल्सो गेव वन लॉ विच इज कॉल्ड एज आइंथोवन्स लॉ. Einthoven's law, and this law states that the sum total voltage of lead 1 and lead 3 is equal to the voltage of lead 2, है ना. कहने का मतलब है जब भी हम ECG को स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड्स से रिकॉर्ड करते हैं तो लीड 1 और लीड 3 का जितना सम टोटल वोल्टेज आता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द वोल्टेज ऑफ लीड 2, and this law is called as Einthoven's law. So the unipolar limb leads, or we can call it as augmented unipolar limb lead, है ना. तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, यूनिपोलर का मतलब होता है वन पोल, है ना. इट इज नॉट बाइपोलर, सो इट विल रिकॉर्ड द पोटेंशियल ऑफ ओनली वन पॉइंट. ठीक है, और वो पॉइंट कोई सा भी हो सकता है. इट कैन बी अ राइट आर्म, इट कैन बी अ लेफ्ट आर्म, इट कैन बी अ लेफ्ट लेग एज वेल. ठीक है. Then the electrodes, they are of two types. One is the indifferent electrode which is kept at a zero potential. इसको हम reference point भी बोलते हैं, है ना. इसका कोई ज़्यादा meaning नहीं है. It is just for reference purpose. जो second है that is the main electrode or the exploring electrode. It is placed at a point where the potential is to be recorded, है ना. तो हमारा जो main electrode है जहाँ का हमको potential लेना है उसको हम exploring electrode बोलते हैं. ठीक है, अगर हम symbolically represent करें तो unipolar limb leads को हम AVR, AVL और AVF के फॉर्म में represent करते हैं. जैसे कि हम limb leads को L1, L2 और L3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, है ना. सो दीज वर आर बाइपोलर लीड्स, लिम्ब लीड्स, एंड दीज आर आर यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, है ना. तो जब हम AVR बोलते हैं तो AVR का फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड वेक्टर राइट आर्म. R स्टैंड्स फॉर राइट आर्म, then L stands for left arm and F stands for left foot or left leg. ठीक है. Now here are two electrodes, the negative terminal and the positive terminal. Indifferent electrode is kept at the negative terminal, exploring electrode is kept at the positive terminal. तो अगर हमारा positive terminal right arm है तो negative terminal क्या होगा? Negative terminal will be left arm and left foot. ठीक है. If the positive terminal is left arm तो negative terminal क्या होगा? बाकी तो क्या बच गया? Right arm and left foot. ठीक है. और हमारा अगर लेफ्ट लेग है पॉजिटिव टर्मिनल तो क्या बच गया? राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, है ना. तो हम ये कह सकते हैं वी कॉल एज ऑगमेंटेड वेक्टर right arm when the negative electrode is left arm and left foot and the positive is right arm. Then augmented vector left arm when the negative terminal is right arm and left foot and the positive terminal is left arm. और तीसरा है augmented vector left foot when the negative terminal is right arm and left arm and the positive terminal is left leg. So now we will study about the unipolar chest leads. एंड एज द नेम सजेस्ट इनको हम प्रीकॉर्डियल लीड्स भी बोलते हैं. प्रीकॉर्डियम का मतलब होता है इट इज़ द एरिया अराउंड द हार्ट. तो क्योंकि इन लीड्स को हम चेस्ट पर डिफरेंट पॉइंट पर हार्ट के आसपास रखते हैं इसलिए हम इनको चेस्ट लीड्स भी या फिर प्रीकॉर्डियल लीड्स भी बोलते हैं, है ना. तो ये क्या करती हैं? दे रिकॉर्ड द पोटेंशियल और द वोल्टेज ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन प्रीकॉर्डियम दैट इज द डिफरेंट लोकेशंस अराउंड द हार्ट, है ना. सो दीज लीड्स रिकॉर्ड द एक्शन पोटेंशियल of the heart starting from the right side of the heart to the left side of the heart. ठीक है. अब यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रोड्स को हम यूज करते हैं. जो पहला इलेक्ट्रोड है दैट इज द इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड विच इज प्लेस्ड एट द नेगेटिव टर्मिनल, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है दैट इज द एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड. इसको हम चेस्ट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं क्योंकि इस इलेक्ट्रोड को हम हार्ट के डिफरेंट रीजन्स पर प्लेस करते हैं, है ना. तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये एक स्मॉल मेटल कैप का होता है जिसके ऊपर एक रबर का बल्ब होता है. इट इज जस्ट लाइक अ
है ना, इस टाइप का एक रबर का एक कैप होता है, यहाँ पर एक मेटल की प्लेट होती है ना। तो सक्शन वैक्यूम के अकॉर्डिंग व्हेन वी प्रेस दिस रबर बल्ब, तो वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट होता है और ये चेस्ट के आसपास के रीजन पर ये कनेक्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वैक्यूम, है ना। तो ये जो लीड्स हैं इनको हम बोलते हैं V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6. लाइक बाइपोलर वॉज L1, L2, L3, यूनिपोलर वॉज AVR, AVL एंड AVF एंड चेस्ट लीड्स आर फ्रॉम V1 to V6, है ना। तो हियर यू आर सीइंग अ डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द चेस्ट। ये जो बोन आपको दिख रही है दिस इज स्टर्नम, ये क्लैविकल है, दीज आर द रिब्स, और रिब्स के बीच में ये जो स्पेसेस आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, है ना। तो लेट अस सी द लोकेशन ऑफ द चेस्ट लीड्स, है ना। तो जो V1 है इट इज प्लेस्ड एट द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट स्टर्नल बॉर्डर। रिमेंबर यहाँ पर हम चेस्ट लीड्स की बात कर रहे हैं, है ना। जो इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड है हमारा ये नेगेटिव टर्मिनल पर प्लेस्ड है, ठीक है। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस कौन सी हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड राइट स्टर्नल बॉर्डर, दिस इज द स्टर्नम। तो स्टर्नम का ये वाला जो बॉर्डर है दैट इज द राइट बॉर्डर, है ना। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ V1, ठीक है। देन V2, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर. So again we will go right at the fourth intercostal space and the left sternal border. This is the left sternal border. This is the place of V2. Let us skip V3 for a second. V4 का जो पोजीशन है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, है ना. तो अगर हम एक्सिला से एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंटीरियरली, दैट इज एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. सो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, दैट इज द लोकेशन ऑफ V4. ठीक है. और V2 और V4 के बीच में कहीं देयर इज लोकेशन ऑफ V3. देन V5 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन, है ना. तो यहां पर हम देखेंगे अगेन द इंटरकोस्टल स्पेस इज फिफ्थ, बट इफ वी ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, फ्रॉम द मिडल ऑफ द एक्सिला, तो इट कम्स एट V5, है ना. एंड सिक्स्थ V6, इट इज द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, दैट इज द लेफ्ट पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन. तो ये थोड़ा सा और पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक है. इसको हम बोलते हैं V6. थोड़ा सा और पोस्टीरियरली जाता है V6, ठीक है. सो V1 and V2 आर टुगेदर नोन एज एंटीरियर लीड्स, क्योंकि ये हार्ट के एंटीरियर सरफेस के एक्शन पोटेंशियल को रिकॉर्ड करती हैं. V3 and V4 आर नोन एज सेप्टल लीड्स, क्योंकि ये हार्ट के सेप्टम के एरिया के एक्शन पोटेंशियल को रिकॉर्ड करती हैं. एंड V5 एंड V6 आर नोन एज लैटरल लीड्स, क्योंकि ये जो हार्ट का जो लैटरल पोर्शन है, ठीक है, बिल्कुल लैटरली पीछे की तरफ, लैटरल साइड ऑफ द हार्ट, वहाँ के पोटेंशियल को रिकॉर्ड करती. So I hope you understood the topic. This is the part 1 of ECG. Part 2 of ECG will be delivered soon. Thanks for watching.